this happens now, yeah. Huh? This happens now. They always say there is a biology student, then don't know anything. They can't do mathematics. उनका brain sharp नहीं होता है. The same way we will put them down by saying that genetic engine में करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है. What the engineers do? They will take this part from this machine and they will put into this machine. They will take part from this machine and they will put in that machine. है ना रितम? हो गया. Engineering is only that thing. यहाँ का माल उधर, उधर का माल उधर, उधर का माल उधर, उधर का माल उधर, है ना से ना? So simple. So that is only engineering, that is only biotechnology, that is only genetic engineering. बस that's all. Chapter खत्म. है ना? So simple. अब ये जो चीज़ है, whatever I have said you, that what I will do, the theory remains the same. Make it very simple. Don't make the chapter very complicated. The theory is very simple. क्या करना है सेना? What we have to do, Vivian? What we have to do, Namita? Panatoli? What we have to do? Just simple. इधर का माल उठा के इधर डाल दो, इधर का माल उठा के इधर डाल दो, इधर का माल उठा के इधर डाल, बस that's all, nothing else. Whatever you require. Suppose what I need, suppose I need like Swim is very smart, Swim is very smart boy. What I need his brain. So what I will do, I will take his DNA which is actually controlling his brain. I will cut that DNA and I will put into my body. Okay, so my brain will start working like Swim's brain and I will also become smart. है ना Swim, correct ना? चलो, so jokes apart, we are going into this chapter. The theory is this one. Theory सबका clear हो गया. The theory is this one. Now definitely we will go with the process and the principles and everything. Now you see the chapter will become very easy. Just इतना चीज़ याद रखना, chapter में क्या करना है तुमको एक person से you will take DNA from one person and you will put into the other person. Clear Rishi? Clear Ritam? Shubho, Ritu, everyone clear? So biotechnology देखो, you all are going for the NEET board तो सबका cancel हो ही गया है. And maybe those who are in the West Bengal board, result is expected to come by today, that whether the exam will happen or not. Abhi there is a dilemma, but I will just suggest you keep on studying unless and until final confirmation comes. Once the final confirmation comes, then you can shift your concentration directly towards the NEET. But NEET will happen in August only, that is for sure. NEET will happen in August only, that is for sure. चलो बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन तो डेफिनेटली यू डोंट रिक्वायर, तुम लोग का तो डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है. डेफिनेशन देन ऑल्सो यू कैन राइट इट. ओके, राइट इट एवरीवन दैट इट इज़ अ टेक्निक where we are using the genetic material of microorganism or animal or plant for our own benefit. तो इसका डेफिनेशन कहीं से भी लिख लेना. डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है. इट्स नॉट अबाउट टू कम इन योर एग्जामिनेशन. देन कम्स द प्रिंसिपल. ऑन विच प्रिंसिपल इट इज़ वर्किंग? द फर्स्ट प्रिंसिपल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली मतलब क्या बच्चा लोग? व्हाट आई सेड यू, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर. दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. व्हाट आई सेड यू, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, बस दैट्स ऑल. बट one thing, as I said you, that I need Swim's brain. Okay, for that what I was doing, Swim, I was cutting your DNA and putting into my body. But suppose that DNA have came into my body, but that DNA have to express. What I said, the DNA have to express. अगर वो DNA मेरे बॉडी में आ गया, that DNA have came into my body, but it is not expressing, it is not doing the work. So is it of any use? No, it is of not any use. So what it has to do? It has to, that particular DNA have to express itself. Clear Ritam? It has to express itself. Clear Ritu? It has to express itself. And not only this, I will say you, ये जितना भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जितना भी एग्जाम्पल बताया ना, दैट आई विल टेक योर DNA और यू विल टेक माई DNA, बोलना बहुत आसान है. By saying it is so very easy, but we are not allowed to do these all things. We cannot do these all things. Okay, mostly these all experiments are done in the plant and the microorganism. Why it is done on the plant and the microorganism? So that we can get benefit from them. And see, ये तो बोल दिया आसानी से कि उसका DNA निकाला, इसमें डाल दिया, but it is a very hectic process. Clear Ritam? It is a very hectic process. You have to do so many things. Okay, so definitely time is consumed, money is consumed.
So when time is consumed, money is consumed. When you are doing a particular thing, you are not doing for one generation. When you are doing it, it should pass from one generation to the next, to next, to next, to next. For example, broccoli. ब्रोकोली देखा है एवरीवन, है ना? ब्रोकोली देखा है, यस और नो? रितम, ब्रोकोली देखा है? यू नो व्हाट इज ब्रोकोली? Yes, Ritam? Yes, sir. Okay, yes. You have seen Yes. broccoli. Good, good. You have seen broccoli. So देख के ही समझ में आता है it is a mixture of two things. That is a cauliflower and a cabbage. ठीक है? So definitely what they have done, they have mixed the DNA of a cauliflower and the cabbage. मिला दिया. So it's not that they have mixed one cabbage and one cauliflower to get one broccoli. They have formed one broccoli. From that broccoli it have to pass to the next generation. मतलब एक बार hybridization करने से, for doing once only the biotechnology, it have to be maintained to the next generation. It have to be maintained for the next generations. শুভ এই পয়েন্টটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। শুভ, ঋতু, তোদের জন্য এই পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাংলায় একটু বোঝ, ঠিক আছে? ওকে তো এক্সপ্রেস করতেই হবে। ইট হ্যাভ টু শো ইটসেলফ, বাট ইট অলসো হ্যাভ टू पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट्स नॉट दैट कि एक बार कर दिया खत्म, ठीक है? एक बार कर दिया खत्म, इट्स नॉट दैट। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट। রিতম, তুই তোর গার্লফ্রেন্ডকে একটা রোজ ফ্লাওয়ার গিফট করলে, ইটস নট দ্যাট ফর দ্যাট পার্টিকুলার ডে অনলি। তুই একবার হ্যাঁ একটা মেয়েকে হাঁ করিয়ে নিয়েছিস, নেক্সট টাইম অলসো শি উইল কাম ফর ইয়োর ডেট। হ্যাঁ, ইটস নট দ্যাট ওয়ান রোজ ফর অনলি ওয়ান ডেট। when you give one rose, you expect that next day also she will come to meet me. The same thing, when you do the biotechnology once, you will expect that for the next generation also it have to continue. Clear बच्चा लोग? So principle is only this one. Yes, Sena, question may come from here like this one, on which principle it is based, on this principle it is based. इसके बाहर से कुछ आएगा, it is wrong. ठीक है? ठीक है? Clear? एकदम क्लियर। अभी देखो, हाउ द थिंग आई विल मेक वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे बताया था ना लास्ट टाइम ऑल्सो व्हेन आई डिड रेप्लिकेशन विथ यू, रेप्लिकेशन इज सेम एज कुकिंग बिरयानी, है ना? हु लव्स बिरयानी? बोलो तो, हाउ मेनी ऑफ यू लव बिरयानी? है एनीवन नो लव बिरयानी? हाँ, swim or you love fork with bamboo shoot? ডেফিনেশনটা কি? আচ্ছা, ডেফিনেশনটা যেটা বললাম নবীন, একটু তুই দেরি করেছিস, তাও আবার আমি তোকে শুরু থেকে বলে দিচ্ছি। রাইট ফ্রম দ্য বিগিনিং আই এম সেইং ইউ বায়োটেকনোলজি হ্যাজ স্টার্ট। বায়োটেকনোলজি ডেফিনেশন ইজ নট রিকোয়ার্ড। আই হ্যাভ জাস্ট সেড ইউ দেন অলসো যে কোনো বই থেকে ডেফিনেশনটা লিখে নাও। ইট ইজ দ্য ইউজ অফ মাইক্রো অর্গেনিজম और एनिमल और प्लांट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या करना है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इसका माल इधर, इसका माल इधर। दैट मीन्स फ्रॉम वन बॉडी आई विल टेक द डीएनए, पुट इनटू द नेक्स्ट बॉडी, then to the next body, then to the next body, then to the next body. Suppose I need your brain, Nabin, I need your brain. What I will do? That particular DNA which is controlling your brain I will cut and put into my body. This is the principle only. ठीक है? ठीक है? Okay. अच्छा, how many of you love biryani? बताया नहीं किसी ने? None of you love biryani? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोलकाता and biryani are synonym of each other. हाँ? हाँ? कोलकाता and biryani is synonym for each other. हाँ, रितम? हाँ? Yes, swim, or swim will love more the pork with bamboo shoot. हाँ, pork with bamboo shoot. तो चलो अभी हम लोग बिरयानी बनाएंगे। We will do बिरयानी, हैं? We will do biryani and we will complete this particular tools and technique. हाँ, Rukhsana, you are there? I hope so. Yes, can't live without biryani. We love biryani. We Bengalis and biryanis are made for each other. चलो, so the same thing, बिरयानी बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? We have to arrange the masala. The same thing we will. For before doing the अच्छा, all of you, when all of you will come to Kolkata na meet me, हाँ, we will treat you, we Bengalis will treat you, है ना रितम? हाँ, we Bengalis will treat them, हाँ, with biryani. हाँ, ये हम लोग का शान है, we are proud of that one. हाँ, and definitely contact Ritam, he is a very good guy. All of you, you have never written Priya, তুই বাঙালি না কি? হ্যাঁ, তুই বাঙালি নামের উপরে কি করছিস? বিরিয়ানি খাসনি কোনো দিন? हाँ प्रिया, चलो तो सेम थिंग वी विल डू। चलो बिरयानी हो गया ख़त्म, अभी आ जाओ यहाँ पे। हाँ, बिरयानी ख़त्म हो गया, अभी कल खाएंगे बिरयानी। तो फॉर मेकिंग द बिरयानी यू नीड द मसाला। द सेम थिंग आई विल बी डूइंग। व्हाट इज द टूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर मेकिंग द बिरयानी? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यू नो वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है बाबू? बोल दो तो ये सेल है, इनसाइड द सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज क्रोमेटिन मटेरियल। तो तुमको डीएनए निकालना है, इफ यू हैव टू टेक आउट द डीएनए, क्या करना पड़ेगा? सबसे
सबसे पहले शुभो यू हैव टू ब्रेक द सेल, उसके बाद अंदर आओ, न्यूक्लियस के अंदर जाओ, ब्रेक द न्यूक्लियस, टेक आउट द होल क्रोमेटिन मटेरियल, वहाँ से यू काट के निकालो जीन, यू विल टेक आउट दिस जीन, है ना, मेक इट वेरी सिंपल, एकदम सिंपल तरीका से सुनो। डीएनए कहाँ है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक द सेल, सेल को ब्रेक करना है, ब्रेक करके उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आना है, पूरा डीएनए को निकालना। तो हमको पूरा डीएनए नहीं चाहिए, आई नीड द डीएनए ऑफ माई इंटरेस्ट, सो आई विल कट द डीएनए ऑफ माई इंटरेस्ट। तो ये तुमको करना है, यू हैव टू मेक दिस वन, यू हैव टू डू दिस वन। तो इतना सारा काम करने के लिए तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑल थिंग। चलो एकदम फटाफट लिखेंगे। नंबर 1 एंजाइम, डेफिनेटली फॉर डूइंग दिस थिंग we need a lot of enzyme. in that one, number A enzyme के अंदर में A is lysine enzyme। lysine enzyme का मतलब क्या हुआ नबीन? एड माने की what is the meaning of lysine enzyme? that will break the cell, maybe the cell wall or the cell membrane। सबसे पहले तो तुमको वही करना है ना, सेल को ब्रेक करना है, you have to break the cell। okay, so it is used for breaking cell। लिख लो यहाँ पे क्या करना है, फॉर ब्रेकिंग सेल, एकदम ईजी से ना, मेक इट वेरी इजी। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, समटाइम्स यू कैन गेट अ क्वेश्चन दैट विच लाइसिंग एंजाइम, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बैक्टीरिया के केस में, तो जो तुम एंजाइम यूज करोगे उसका नाम है लाइसोजाइम। क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर, सेना आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर दैट विच लाइसिंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इट इज लाइसोजाइम। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन इन द केस ऑफ प्लांट, in the case of plant, the lysine enzyme is cellulase। in the case of fungus it is chitinase। ये सारा तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या सेल को ब्रेक कर दिया, सेल को ब्रेक करके क्या निकाल दिया, डीएनए बाहर निकाल दिया। अच्छा, वन मोर थिंग, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट इन द ईयर 2019, yes, in the year 2019 I just in between having a talk, I explained my students that I used to do this, because as I said you, I was have done masters into this, I was doing this one, okay, and we used to take a DNA out, with the help of cold ethyl alcohol। हम लोग इसको इथाइल अल्कोहल से सेपरेट करते थे, which is not there in your syllabus, but I don't know how it came in the 2019, this particular question came, that how we will separate it। DNA तो पूरा सेल के साथ मिक्स है, सेल एंड DNA is totally mixed, all the cell content and DNA is mixed, so how we will take that particular DNA only out, we used to do it with the cold ethyl। जब भी मिक्सचर में from the side you will give the cold ethyl alcohol ना, the DNA will come at the top, so this is the way you used to separate the DNA। तो ये हो गया एंजाइम। अभी सिर्फ सेल को ब्रेक किया, ओनली आई हैव डन व्हाट, ओनली आई हैव ब्रेकन द सेल, आई हैव ब्रोकन द सेल, ठीक है। सेल ब्रेक करके वहाँ से कोल्ड इथाइल अल्कोहल से डीएनए निकाल दिया, आई हैव टेकन द डीएनए, होल डीएनए आउट। बट सपोज आउट ऑफ दिस डीएनए आई रिक्वायर ओनली दिस अमाउंट ऑफ डीएनए, आई रिक्वायर ओनली, ये सारा ज़रूरत नहीं है, आई डोंट रिक्वायर द होल डीएनए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कट विद द सीजर। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीजर से काट के निकाल देंगे, ठीक है, सीजर से काट के निकाल देंगे। तो एक नंबर तो हो गया लाइसिन एंजाइम। बी नंबर में आ जाओ, क्या, क्लीविंग एंजाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट शुभो? क्लीविंग एंजाइम, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर सीजर। व्हाई आई कॉल ऋषि मॉलिक्यूलर सीजर, नबीन व्हाई? आई होप यू आर गेटिंग इट, बिकॉज इट इज डूइंग द वर्क ऑफ कटिंग, ठीक है, इट इज डूइंग द वर्क ऑफ कटिंग। तो ये किस तरीका से कट करेगा, इट कैन ऑल्सो कट इन अ सेपरेट वे, सेवरल वे। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो एक्सोन्यूक्लियस, बी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। आई होप सो दिस इज क्लियर। अभी हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। आई एम रबिंग दिस, हाँ, आई एम रबिंग ए। अभी सपोज दिस इज द डीएनए, हाँ, इफ यू नीड द कॉर्नर पोर्शन को काट के निकालना है तो क्या, इफ यू नीड द कॉर्नर पोर्शन एक्सोन्यूक्लियस विल डू।
If you need the middle portion, endonucleus will do. Then what is restriction endonucleus? What is this particular restriction endonucleus? That I will definitely explain you in more detail. Suppose this was the DNA, na, it was cutting straight like this, it was cutting straight like this, but here in this condition it will cut in a slanting way, it will cut in a slanting way, the scissor will cut in a slanting way. Okay, the scissor will cut in a slanting way. When the scissor will cut in a slanting way, बच्चा लोग, when the scissor will be cut in a slanting way, देखो figure कैसा आएगा, how the figure will come, how the figure will come. If you will cut in a slanting way, just imagine the figure will come, the figure will come something like, the figure will come something like in this way, because ये slanting way में कटा है, this way I am cutting it. If it is cut in a slanting way, इस तरीका से बनाओ या इस तरीका से बनाओ, same thing. It is cut in a slanting way, is it or not? So this particular end which is not having the complementary position, which is not having the complementary part, इस part को हम लोग क्या बोलते हैं, hanging. What I will say, hanging end. Why this hanging end is required? Because if it is in this particular position, na, so when the new DNA will come and will try to attach here, it can easily attach. It can easily attach. Those who used to do the engineering work और घर में सामान तोड़ने का जो कोई काम करता है, they will know very clearly. When you have a particular thing in a slanting way, ना, they can insert somewhere very clearly और easily. ठीक है, स्पेशली कारपेंटर लोग को देखा होगा करते हुए काम. When they will make a point, ना, they will always cut in a slanting way. देखा है? Why? Because if it is in a slanting way, it can easily fit in that particular corner. The same way it is this. If it is cut in a slanting way, this is the hanging end. It is very sticky. What it is? It is very sticky, so that the other DNA will get attached very easily here. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, याद रखना, sticky end or hanging end or hanging site. And one more important thing here, this particular site is also known as palindrome sequence. Palindrome लिख लो इसको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नबी क्वेश्चन will come from here. Palindrome sequence, रुखसाना palindrome sequence, ठीक है, या palindrome sequence. Now what is palindrome sequence? Definitely you will ask me, sir ये palindrome sequence क्या है? Palindrome sequence ये है that suppose Ritam and Ritam का गर्लफ्रेंड are going somewhere, ठीक है, ठीक है, Ritam and Ritam का गर्लफ्रेंड are going somewhere, ठीक है. So Ritam अचानक से वो दूसरा लड़की का तरफ देखा, हाँ, he has seen some towards the some other girl. तो गर्लफ्रेंड क्या बोलेगा, रितम this is your problem, this is your fault, you have done the fault. हाँ, अगर रितम का गर्लफ्रेंड भी गलती से दूसरा लड़की को देखा, then also रितम का गर्लफ्रेंड will say, रितम this is your fault, why you have brought me here. होता है ना, every time the fault is for the boy. That means इधर से भी देखो तो भी गलती, इधर से भी देखो तो भी गलती. The same thing is here. The same thing is here. If you see it from the 5 prime end to 3 prime end, देख लो, if you see from the 5 prime end to 3 prime end, like G A A T T C, ठीक है, G A A T T C, एग्जाम्पल वॉज गुड ना रितम, हाँ, और यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम अगर इसका उल्टा करो तो सीक्वेंस क्या होगा, G का उल्टा क्या होगा, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू G, हाँ, what is complementary to G, C, A का complementary T, A का complementary T, T का complementary A and G. Now you read from this corner to this corner or this corner to this corner, it is same. देखा मन की बात, because as I said you ना, अभी तो I am very much बुढ़ा है ना, my all hairs are white, but हाँ, मैं भी कभी जवान था, इट वॉज समथिंग लाइक दैट ना, हाँ से ना, वंस अपॉन अ टाइम रितम आई वॉज ऑल्सो यंग लाइक यू ऑल, हैं, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस. सो GAATTC, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन कैसा आएगा नबीन, दे विल गिव यू 4 ऑप्शन एंड दे विल से यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस. एकदम सिंपल है, जस्ट यू हैव टू नो व्हाट इज पैलिंड्रोम. क्या करेंगे रुखसाना, क्या करेंगे इलोंग, व्हाट वी विल डू, मैरलिन, नबीन, दैट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इज सेम, ठीक है, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट. तो दिस इज अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस. ये कब क्रिएट होगा, व्हेन दिस पैलिंड्रोम सीक्वेंस इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड व्हेन इट इज कट विद द
restriction enzyme. So this is a special type of seizure. Normally we use this seizure only. नॉर्मली हम लोग इस सीजर को ही यूज़ करते हैं. नॉर्मली ये वाला सीजर और ये वाला सीजर यूज़ नहीं होता है, बिकॉज व्हेन इट क्रिएट द हैंगिंग इट बिकम्स इजी फॉर बाइंडिंग द थिंग. ठीक है, तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आई विल बी गिविंग वन नेम फॉर दैट वन. आई विल बी जस्ट गिविंग वन नेम फॉर दैट वन. एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल इज इको R1. यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा. वन मोर क्वेश्चन विल कम, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अ एंजाइम. दिस इज द नेम ऑफ अ एंजाइम. तो याद रखना हाउ अ नेम ऑफ अ एंजाइम इज गिवन. Name of a enzyme is given that particular enzyme is taken out from which particular organism. So first word is for the genus of that organism. The second two is for the species of that organism. Okay, this is for the strain. Which strain it is? मतलब E. coli का which strain? They have several strain. Like E. coli का subspecies होता है ना. It's not that tough. It's not that tough. Send a palindrome sequence. We will do certain practice. Just after I complete the class, I will send certain question for practice. Practice कर लेना, ठीक है? I will complete this chapter by today only. Don't worry. तो strain, palindrome sequence पे यही क्वेश्चन आएगा. Which of the following is a palindrome sequence? Okay? तो ये होगा strain. कौन सा strain का? They have several strain X, Y, Z, A, B, C, D. जो भी strain होगा, so it is the name of the strain. And this is the number. Which number? Which number of enzyme? Which number? एंजाइम. विच नंबर एंजाइम मतलब ये पहला एंजाइम है और सेकेंड एंजाइम और थर्ड एंजाइम और फोर्थ एंजाइम और फिफ्थ एंजाइम और थर्ड एंजाइम, लाइक दैट वन. So sometimes a question may come like this. Suppose a question have came. Suppose what I will say you, like HIND3, HIND3. They will ask you this is which number enzyme. This is third number enzyme from that particular species. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या कर लिया बच्चा लोग, हम लोग क्या क्या कर लिया. सेल को ब्रेक कर दिया. सेल को ब्रेक करके डीएनए को निकाल दिया. डीएनए को निकाल के डीएनए को काट दिया. वी हैव ऑलरेडी कटेड द डीएनए. ठीक है, अभी 3 नंबर में आ जाएंगे. नंबर सी. नंबर सी में क्या है? सिंथेसाइजिंग एंजाइम. अभी ये वाला तुम लोग हमको बताओगे. यू ऑल विल से मी दिस वन. सपोज दैट डीएनए हम जो निकाला, द डीएनए दैट हैव टेकन इट आउट, इट इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम है. सो इफ दैट डीएनए को आई हैव टू इंक्रीज द डीएनए, दैट मीन्स अगर डीएनए को फॉर्म करना होगा, इफ आई हैव टू मेक मोर डीएनए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डीएनए, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम? बोलो तो, लेट मी सी. पढ़ाया था ना, टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम डीएनए विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड? फटाफट बोल दो, एकदम फटाफट. डीएनए बनाना है फ्रॉम दैट सेम डीएनए ओनली. अरे इतना टाइम क्यों लगेगा? अभी तो पढ़ाया था, कल परसों ही तो पढ़ाया वो चैप्टर. यू हैव टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम डीएनए. अरे बोलो, कुछ तो बोलो मेरा बच्चा लोग. अरे मेरा बच्चा सब सो गया क्या? अरे बोल तो. अभी क्या पढ़ाया था? अच्छा, प्रोसेस का नाम क्या है? व्हेन यू फॉर्म डीएनए फ्रॉम डीएनए. सर फोड़ देंगे हम अपना, जल्दी बोलो. अरे डीएनए टू डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ से आ गया? हाँ, रेप्लिकेशन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो जब डीएनए एमआरएनए से बनाएगा ना. तो जो व्हेन यू मेक ए डीएनए फ्रॉम द एमआरएनए, हाँ रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन में व्हाट वाज द मेन एंजाइम दैट वाज डूइंग द वर्क ऑफ द रेप्लिकेशन? कौन सा था एंजाइम? विच वाज द एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज. कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? ये भी बताया था मैंने. विच डीएनए पॉल? 1, 2 और 3. एकदम परफेक्ट. अब भी ऐसे आओ ना, ऐसे एक बार में आंसर क्यों नहीं मिलता है हमको? तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में कौन सा एंजाइम आ जाएगा? डीएनए पॉल 3. ओके, नाउ खुजो. नाउ कमिंग टू योर पॉइंट. ये तो एक प्रोसेस हो गया, दैट आई कैन मेक डीएनए फ्रॉम डीएनए. एक और प्रोसेस, एज आई जस्ट यू सेड मी, मेकिंग द डीएनए डीएनए फ्रॉम एमआरएनए. डीएनए फ्रॉम एमआरएनए, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो उसका हार्मोन एंजाइम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो इस तरीका से प्रोसेस को एकदम इजी कर लो. ठीक है, इस तरीका से प्रोसेस को एकदम इजी कर लो. तो डन. सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी हो गया. डी में आ जाओ. अगर कहीं कहीं पे कुछ ज्वाइनिंग करना हुआ तो ज्वाइनिंग एंजाइम भी जरूरत पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू ज्वाइन
योर डीएनए माई डीएनए आई हैव टू ज्वाइन द डीएनए ना, तो ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग एंजाइम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइनिंग एंजाइम? नबीन, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइनिंग एंजाइम? एकदम फटाफट बोल दो बच्चा लोग, सबको पता है। वेरी गुड, माई बच्चा आर डूइंग गुड नाउ, वेरी गुड। लाइगेज, सबको आंसर देना पड़ेगा, सबको आंसर देना पड़ेगा, सबको आंसर देना पड़ेगा। एंड अगेन आई एम सेइंग यू, एग्जाम सबको ही अच्छे से दो। वेरी गुड, यू ऑल आर डूइंग गुड, यू ऑल आर डूइंग गुड। और लास्ट एक एंजाइम में आ जाएंगे, लास्ट एक एंजाइम में आ जाएंगे अल्कालाइन फॉस्फेट। ये नहीं पढ़ाया है, ये पहली बार पढ़ा रहे हैं। अल्कालाइन फॉस्फेट, क्लियर रुखसाना? अल्कालाइन फॉस्फेट, ये अल्कालाइन फॉस्फेट क्या करेगा? व्हाट दिस अल्कालाइन फॉस्फेट विल डू, दे विल कट ऑफ, आई एम राइटिंग, अच्छा ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे होगा नहीं, आई एम रबिंग दिस पोर्शन, आई एम राइटिंग हियर। What it will do, alkaline phosphate क्या करेगा? For the alkaline phosphate I'm writing, what it will do, it will do cut off phosphate, it is cutting off phosphate at 5 prime end। क्यों ये cut off कर देगा? 5 prime end से phosphate को निकाल देगा। Why? Because it will prevent recirculation, बिकॉज अगर ये 5 प्राइम एंड पे अगर फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम लोग नहीं काटेंगे, इफ आई डोंट कट द फॉस्फेट ऑफ द 5 प्राइम एंड, ऑल द डीएनए विल बिकम राउंड राउंड राउंड। अगर राउंड हो जाएगा देन यू कैन नॉट डू एनी वर्क। यू नीड द डीएनए इन अ स्ट्रेट कंडीशन, तुमको डीएनए ऐसा चाहिए, यू नीड डीएनए लाइक दिस। सो दैट इज व्हाई वी कट इट, अदरवाइज द डीएनए विल बिकम सर्कुलर लाइक दिस। ठीक है, सो ऑल एंजाइम रेडी नाउ, ऑल एंजाइम रेडी नाउ। ठीक है, ऑल एंजाइम रेडी नाउ। कोई डाउट यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट हुआ होगा। मेक द कंसेप्ट वेरी क्लियर, हम लोगों ने को क्या करना है, हाउ टू मेक अ बिरयानी, दैट इज द वेरी मेन कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको क्या करना था, सेल को ब्रेक करना था, ब्रेक किया, डीएनए निकाला, डीएनए निकालने के बाद डीएनए को काटा, डीएनए को काट दिया, बस दैट्स ऑल, खत्म। उसके बाद और जो छोटा छोटा चीज़ें कर लिया। ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर रेडी, ऑल द एंजाइम्स आर रेडी। अच्छा, तो एज आई सेड यू दैट आई नीड योर डीएनए, स्विम, I need your DNA. So what I will do, I will take your DNA and I can put it directly into my body, but it is not easy. ऐसा होता नहीं है, it is not happening like this one, it does not happen like this one, it does not. I have to transfer this through a particular vector. बीच में एक वेक्टर चाहिए, बीच में एक मीडियम चाहिए, तो that particular DNA which I have taken out, that is the DNA of interest। क्या बोला? डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस डीएनए को सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज स्विम्स, हाँ सपोज ये स्विम का डीएनए हो गया सपोज। ठीक है, आई नीड टू पुट इनटू माय बॉडी, सपोज माय नेम इज इम्तियाज, आई वांट टू पुट इनटू माय बॉडी। ठीक है, दिस इज द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माय बॉडी, सपोज माय डीएनए, सपोज ये मेरा डीएनए। ठीक है, आई कैन नॉट पास इट डायरेक्टली हियर, in between there have to be a vector, in between there have to be a vector। वेक्टर मतलब एक व्हीकल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया ट्रांसफर होता है ना, ओके, जस्ट लाइक मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट does not come directly into a body, it comes through a vector and that vector is mosquito, the same thing। this DNA will not come into my body directly, they will require a vector in between। तो अभी वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये वेक्टर है क्या, how is this vector look like and what is this vector। so the idea is very clear, the idea is very clear। एक वेक्टर होगा, नॉर्मली वी यूज द वेक्टर एज प्लास्मिड। सपोज ये वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर प्लास्मिड विच इज अ सर्कुलर डीएनए। इसको करना क्या है, वेरी सिंपल। सपोज क्या है, ये था स्विम का डीएनए, ये था वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर, ये है स्विम का डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए ऑफ, yes, DNA is the delivery man। suppose this particular this thing, this thing, this is the DNA of interest। इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, we call it as also as passenger DNA। ठीक है, इसको हम लोग passenger DNA भी बोलते हैं, याद रखना। क्या करना है इसको, what I will do now, I will cut this particular thing and this particular thing, exactly that particular portion जो हमको चाहिए, with the same restriction endonucleus, it has to be the same, ये याद रखना, इट हैव टू बी कट विद द सेम सीजर। ठीक है, सपोज एक कारपेंटर इसको काटेगा, एक कारपेंटर इसको काटेगा, कभी भी वो फिक्स नहीं होगा, है ना। सपोज तुम घर में एक अलमीरा बना रहे हो एंड यू आर सेइंग हाफ वर्क वन कारपेंटर डू, हाफ वर्क अनदर कारपेंटर डू, कभी क्या फिक्स होगा, कभी फिक्स नहीं होगा। द सेम थिंग
हियर वन एंजाइम ओनली विल कट दिस पोर्शन, विल कट दिस पोर्शन, ठीक है। ये दोनों कट के क्या होगा, ये कट के क्या होगा, ये कट गया यहाँ से, सपोज दिस इज ब्लू कलर, सपोज अगर ये ब्लू कलर का होता तो ये यहाँ पे आके ऐसे मीट कर गया, ओके, दैट मीन्स दिस इज दैट पर्टिकुलर पोर्शन विच हैव कम हियर एंड जॉइंट हियर। तो ये हुआ वेक्टर। नाउ दिस पर्टिकुलर वेक्टर कैन गो इनटू माय बॉडी, कैन कम इनटू माय बॉडी, फिर हो जाएगा प्रोसेस एकदम सिंपल। तो ये वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वेक्टर डीएनए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए। अभी हम लोग वेक्टर डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंजाइम तो पढ़ लिया ना, एंजाइम तो पढ़ लिया था। अभी 2 नंबर में क्या हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर डीएनए भी बोलते हैं इसको और वेहिकल डीएनए भी बोलते हैं इसको। इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक हैव टू बी देयर, देन आई कैन कॉल इट अ वेक्टर डीएनए। किसको किसको हम लोग वेक्टर डीएनए बोल सकते हैं, इट शुड हैव सर्टेन एरिया अंडर इट। क्या क्या एरिया होना चाहिए, इट शुड हैव ओरियार। अभी बोलो तो ओरियार क्या है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैव टू रेप्लिकेट। अगर रेप्लिकेट नहीं होगा देन हाउ द डीएनए विल इंक्रीज, it has to replicate, it has to be replicated. I will come to this point once again, replication होना चाहिए। Number 2, it should have selectable marker area. This is our area or region, you can call it, same thing. This is very much important बच्चा लोग, this is very much important. How I will explain you, suppose as I am saying again and again, बोलना बहुत आसान है। हम लोग के कंट्री में डीएनए ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज वी जस्ट से वी डोंट डू एनीथिंग, एंड इवन फॉर डूइंग दैट थिंग वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर सेटअप ना। इसीलिए वैक्सीन बनाने में 2 साल लग गया कोरोना का अभी तक, देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, एंड वी आर बेगिंग फ्रॉम द अदर कंट्री टू गिव अस द वैक्सीन, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। द सेम थिंग, सो बोलना तो बहुत आसान है, बट वी डोंट नो व्हेन आई हैव पुट दैट पर्टिकुलर डीएनए इनटू द वेक्टर, that vector have taken the DNA or not. I'm not sure. I'm not sure whether the DNA vector have taken the DNA of interest or not. ঠিক আছে শুভ, মানে যখনই আমি DNA of interest সেন্ড করলাম বা ঢোকালাম ভেক্টরের ভিতরে, ভেক্টর নিয়েছে কি না কি করে বুঝবো, হ্যাঁ কি করে বুঝবো, ইজ ইট নট। হ্যাঁ, সাপোজ লাভ লেটার রিতম পাঠিয়েছে নিজের গার্লফ্রেন্ডকে, ওই লাভ লেটার পড়ার পর ওর গার্লফ্রেন্ডটা কি হ্যাঁ বলবে কি না বলবে তো বুঝতে পারছে না, দ্য সেম থিং। হ্যাঁ, whenever this particular passenger DNA have gone into the vector DNA, whether it have taken that or not, we don't know. For that thing there should be a certain marker region which will determine. একটা particular marker region থাকে, they are nothing, they are the antibiotic resistant region, antibiotic resistant region. With that antibiotic resistant region we are able to find it whether that particular have taken the passenger DNA or not. ठीक है, ठीक है, is it selectable marker region? And definitely number 3 is cloning site have to be there. What is this cloning site? Attachment site, where the attachment will happen. Attachment अगर होगा ही नहीं तो वेक्टर का क्या फायदा, attachment have to happen there, okay, where the passenger DNA will come and attach. ये तो एकदम सिंपल सा है, ये तो एकदम सिंपल सा है। एंड द अदर थिंग इज दैट नंबर 4, ओके, दैट वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया, इट हैव टू बी वेक्टर should be accepted, it should go into the body, accepted by plant or animal से accept होना पड़ेगा, they have to accept it। वेक्टर बना लिया, सब कुछ कर दिया, बट वो मेरे बॉडी के अंदर भी नहीं आएगा। सपोज आई हैव टेकन द DNA फ्रॉम द स्वीम, आई हैव पुट इनटू द वेक्टर, बट इफ दैट वेक्टर कैन नॉट कम इनटू माय बॉडी, इट इज ऑफ नो यूज ना। तो दैट वेक्टर शुड बी एक्सेप्टेड बाय द प्लांट एंड एनिमल। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, दिस इज द वेक्टर DNA, एनीवन हैव एनी डाउट? हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएगा सेलेक्टेबल मार्कर रीजन के ऊपर, व्हाट आर दैट सेलेक्टेबल मार्कर रीजन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्टेन पर्टिकुलर प्लास्मिड। कुछ तुम्हारे बुक पे है, देख लेना। PBr32 इज देयर, है PBr32 इज देयर एंड सॉरी नॉट 32, PBr320 इज देयर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट इज अनक्लियर, आई विल कम टू दैट वन। ये वाला
Okay, I hope so you can hear me, Namita. Your thing was that the first point is not clear. Namita, listen. ODR means origin of replication. ODR का मतलब क्या बोला? Origin of replication. I will show you an example. Suppose ये था DNA and this is my passenger DNA. Suppose. So this particular plasmid have to replicate again and again, because at the starting of the chapter only I have said you this particular thing have to express themselves. ऐसा नहीं कि just डाल दिया हो गया काम खत्म. They have to express themselves, and when they have to express themselves, so if one plasmid cannot express, it have to increase in number. ये आस्ते आस्ते replicate करेगा, it will replicate. And one more thing बच्चा लोग, one more thing to everyone I'm saying you, that why we will be using vector most of the time, we will be using vector and we will be doing replication in a bacteria. Why? Because bacteria reproduce very fast. Bacteria reproduce very fast. That is why we have to do it into the origin of replication area, where the replication will happen, and when replication happen, this vector will increase in number, and when this vector will increase in number, this is the passenger DNA, that is the DNA of interest, will also increase in number. ये और भी ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा when I will be teaching the next chapter tomorrow, that is the application. When I will be teaching the application, then it will become more easy to you. Okay. अभी बता देते हैं थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बता देते हैं, देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू नमिता. ये नॉर्मली हम लोग ह्यूमन बींग के ऊपर नहीं करते हैं, वी यूज इट टू गेट अ सर्टेन प्रोडक्ट. ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका इंसुलिन प्रोडक्शन. इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट पर्टिकुलर डीएनए which is actually required for the production of the insulin, what we do, we put that particular DNA here. तो सिर्फ एक डीएनए से तो काम नहीं चलेगा ना, एक में डाल दिया, इट्स ओके. व्हाट आफ्टर दैट आई विल डू, आई विल पुट दिस प्लास्मिड इनटू वन बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया तो डिवाइड करेगा फटाफट. व्हेन द बैक्टीरिया विल डिवाइड, plasmid will increase in number. When plasmid will increase in number, this particular DNA will increase in number. When this particular DNA will increase in number, then insulin production will increase. तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों जरूरी है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पैसेंजर डीएनए. ओके, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पैसेंजर डीएनए. क्लियर? क्लियर हुआ नमिता दिस पॉइंट? अच्छा, कुछ कुछ प्लास्मिड का नाम याद रखना. अच्छा, ये सेलेक्टेबल मार्कर रीजन हम तुम लोगों को थोड़ा सा और बता देते हैं, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन में कम फ्रॉम हियर. एक पर्टिकुलर व्हीकल मतलब प्लास्मिड का नाम है PBR, सॉरी स्मॉल p कैपिटल B कैपिटल R 322. ये है एक एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर दैट इज अ प्लास्मिड. यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी सेवरल रीजन, देयर विल बी सेवरल मार्कर रीजन. इसको हम लोग मार्कर रीजन बोलेंगे, मार्कर, M फॉर मार्कर. एंड देयर विल बी ODR, that is the replication. There will be a cloning site, there will be certain cloning site में your DNA will come. But that particular DNA has came or not, we will determine with the help of marker. ये marker will help to determine, because when this cloning will come ना, one of this will become off. जितना भी मार्कर रहेगा, हाउ मेनी मार्कर विल बी देयर, आउट ऑफ दैट ऑल मार्कर one will become off once the cloning enters. So on that basis we can determine whether the passenger DNA have entered here or not. समझ में आया? क्लियर. सम एग्जांपल्स लिख लेते हैं. एक एग्जांपल तो लिख ही दिया तुम्हारा, प्लास्मिड इज वन ऑफ द एग्जांपल. आई होप सो यू ऑल नो व्हाट इज प्लास्मिड. एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल फॉर द वेक्टर. प्लास्मिड इज देयर. आई होप सो एवरीवन नो व्हाट इज प्लास्मिड. ठीक है, प्लास्मिड सबको ही जानता है. एंड द अदर आई एम राइटिंग नंबर 2, बैक्टीरियोफेज लैम्डा. 3 नंबर लिखो. कॉस्मिड, ये सारा एग्जांपल है किसका, सारा एग्जांपल है तुम्हारा वेक्टर का. 4 नंबर लिखो. BAC, कोई बताएगा BAC का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा YAC का फुल फॉर्म क्या है, बोल दो तो. और ये कब यूज करेंगे, व्हेन आई विल बी यूजिंग, व्हेन आई हैव टू ट्रांसफर अ DNA ऑफ 0.5 to 8. Here I have to transfer 9 to 23 base kilo base pair KB. KB. Here I have to do when it is of 30 to 45.
Here I will use when it is 50 to 300. Here I will do when it is 1000 to 2500. So अभी बता दो ये स्टार्ट है. वेरी गुड कुछ आर्टिफिशियल एंड बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. वेरी गुड. चलो तो ये वेक्टर कब कब यूज करेंगे? जब इतना बड़ा डीएनए ट्रांसफर करना हो. इसको फटाफट लिख लो नबीन, फटाफट लिख लो. रितम, शुभो, इसको फटाफट लिख लो एकदम. लिख लिया इसको फटाफट एकदम. तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट विच वेक्टर डीएनए आई विल बी यूजिंग इफ माय पैसेंजर डी ऑफ दिस साइज और दिस साइज. ठीक है, क्लियर एकदम हो गया, करेक्ट. चलो हो गया खत्म. इसको रब कर देते हैं. Can't see clearly. Can't see. Which you can't see? Which portion you can't see? Which portion? I am reading. Plasmid 0.5 to 8. Bacteriophage 9 to 23. Cosmid 30 to 40. BAC 50 to 300. Yak 1000 to 2500. Okay, I am reading. That is why. Okay, you write it. हाँ. चलो अभी वेक्टर डीएनए भी हो गया. अभी इसके बाद क्या करेंगे? 3 नंबर में आ जाएगा. व्हाट आई सेड? पैसेंजर. क्या बोला इसको? पैसेंजर डीएनए. अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना, ये क्या है? डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एकदम सिंपल. अभी तो थोड़ा देर पहले ही बता दिया. आई एम रबिंग दिस. रुखसाना, इज इट क्लियर दिस वन? ओके, आई एम रबिंग दिस. पैसेंजर डीएनए क्या बोला थोड़ा देर पहले? बच्चा लोग, पैसेंजर डीएनए इज द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. जो डीएनए को मुझे लेना है, जो डीएनए से मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाला है, दैट पर्टिकुलर डीएनए विच आई वांट टू यूज, दैट पर्टिकुलर फिजिकल कैरेक्टर दैट आई वांट इनटू माय बॉडी. आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर डीएनए. बट वो जो डीएनए था बहुत छोटा सा था. दैट वाज इन वेरी स्मॉल अमाउंट. आई हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए. So can anyone say what is the name of that artificial process? By which I can increase this one? I can increase by the process PCR. PCR का फुल फॉर्म क्या है बच्चा लोग? बोल दो तो विवियन. PCR का फुल फॉर्म क्या है? PCR का फुल फॉर्म? वेरी गुड. तो अभी तक देख लो. आई होप सो द आइडिया इज वेरी क्लियर. अभी तक हम लोग क्या किया प्रिया? क्या किया था? सबसे पहले मेरा आइडिया क्या था? आई नीड द कैरेक्टरिस्टिक. ओके, उसके लिए क्या करना है? सेल को तोड़ा, लाइस किया, वहाँ से डीएनए निकाला, डीएनए को काट दिया, डीएनए को काट के वेक्टर में डाल दिया, वेक्टर में डाल के अभी उस वेक्टर को आई हैव टू पुट इनटू माय बॉडी. बट उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक और कर लेंगे, दैट इज पीसीआर. वेरी इजी. यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा? आई विल मेक इट वेरी सिंपल. पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अल्टीमेटली इट इज नथिंग, but ultimately you are forming DNA from DNA, just like replication. But we are not doing replication, right? Replication will take so much of time. हमको जल्दी करना है ना, हमको जल्दी बिरयानी बनाना है. हाँ, I don't have to cook 5 hours. I don't have. तो फटाफट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज ये DNA है, this is DNA. everyone know 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime. इन दोनों के बीच में बॉन्ड है. which bond it is? बताया था ना. व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेस पेयर? द बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. बताया था ना, हाइड्रोजन बॉन्ड. आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस पोर्शन. हाइड्रोजन बॉन्ड. इसको हम लोग क्या करेंगे? व्हाट आई विल डू, आई विल हीट इट एट द 94 डिग्री. लिख लो कितना डिग्री पे हीट करेंगे इसको? कितना डिग्री पे हीट करेंगे बच्चा लोग? 94 डिग्री. इस प्रोसेस को हम लोग फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन. मतलब इसको हीट करके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया. जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएगा. एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एकदम दूर हो गया. वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अनदर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. यहाँ पे अभी देखो टेम्परेचर जो हीट हुआ था 94, अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे. कितना कर देंगे टेम्परेचर? आई विल डू इट एज 54. टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्रिया, 54 डिग्री. 54 डिग्री पे हीट करेंगे. 54 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री पे हीट करेंगे मतलब चलो 94 डिग्री पे हीट करेंगे. 94 डिग्री
विवियन होकाली, टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले टेम्परेचर कितना किया था 94, बाद में टेम्परेचर कम कर दिया 54। अच्छा, बोर्ड इज नॉट क्लियर। ये प्रॉब्लम क्या क्या होता है कभी कभी, बोर्ड इज नॉट क्लियर। अभी दिख रहा है कुछ क्लियर? अभी तो और भी नहीं दिखेगा। बोर्ड इज नॉट क्लियर, एकदम भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। लेट मी जस्ट चेंज अ बिट। अभी कुछ क्लियर हुआ? नाउ अ बिट क्लियर। वीडियो क्वालिटी इज लो, यस, नेट इशू, नेटवर्क इशू। ठीक है, okay, it's clear to somewhere, it's not clear to somewhere. ठीक है, I'm reading the sentence again and again so that it will become easy to you. ठीक है, तो this is the particular DNA, इसको हीट किया, आफ्टर हीटिंग इट बोथ द DNA, so both the DNA have separated. यहाँ पे DNA polymerase will not work. Why Rishi DNA polymerase will not work? Because the temperature is high here, DNA polymerase cannot work. For that only I require a special type of polymerase जिसको हम लोग बोलते हैं TAC, TAQ। क्या बोला? लिख लो, टैक पॉलीमरेज। क्लास 11 में ये पढ़ाया था मैंने बच्चों लोगों को। इफ एनीवन हैव डन माय क्लास 11 टॉपिक, टैक पॉलीमरेज, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ आर्की बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एज वेल, that can survive in high temperature as well, and just like DNA polymerase it also work in 5' to 3' direction। अगर ये 5' to 3' डायरेक्शन में काम करेगा तो it will sit near the 3'। बताया था ना बच्चा लोग। so from here it will start forming this like this and will start forming like this। तो देखो एक डीएनए था, एक डीएनए से अभी यू हैव फॉर्म्ड 2 डीएनए। तो पहला वाला प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर आई एम हीटिंग, इट इज डीनेचुरेशन। यहाँ पे जो प्राइमर को बिठाया या टैक पॉलीमरेज को बिठाया, ये सेकेंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनिलिंग, राइट? अनिलिंग, ANNEALING, अनिलिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। yes, you can leave and re-enter, you can leave and re-enter। yes, Rukshana, you can leave and re-enter। okay, okay, ठीक है। तो what I was saying I will once again repeat। तो पहला वाला प्रोसेस को बोला डीनेचुरेशन, सेकंड वाला प्रोसेस को बोला अनिलिंग। थर्ड प्रोसेस, द थर्ड पोर्शन वेयर एवरीथिंग इज ग्रोइंग, आई विल कॉल इट एज एक्सटेंशन। What I said, one is denaturation, the second one is annealing, third one is extension। This is the three thing which is happening in this PCR। बुक में देखना, there is so many blah 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 things is written, so many things will be written, but इसको easy किस तरीका से करेंगे? Which bond you are breaking? नबीन, हाइड्रोजन बॉन्ड। What temperature? 94 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, डीनेचुरेशन खत्म। आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू अनिलिंग। आई विल पुट द आरएनए प्राइमर, यहाँ पे आरएनए प्राइमर पुट करेगा, यहाँ पे भी आरएनए प्राइमर पुट करेगा। कितना टेम्परेचर में? 54। अनिलिंग ओवर। इसके बाद जो एक्सटेंशन करेगा, विच पॉलीमरेज इज यूज्ड? टैक पॉलीमरेज। इट इज कमिंग फ्रॉम विच बैक्टीरिया? आई एम राइटिंग द नेम ऑफ बैक्टीरिया, थर्मस एक्विटस, थर्मस एक्विटस। ये एक आर्की बैक्टीरिया है। दिस इज वन ऑफ द आर्की बैक्टीरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर। अगर डीएनए कम होगा मेरे पास तो हम डीएनए को एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं? हाउ आई कैन इंक्रीज द डीएनए? बाय डूइंग दिस पीसीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस इज वेरी हाई। ठीक है, क्लियर विवियन? डन। तो पीसीआर इज ऑल्सो डन, मैकेनिज्म भी हो गया सारा खत्म। तो चैप्टर तो खत्म ही हो गया। तो इतना इजी सा चैप्टर है, सब कुछ बोलता है ये क्या है चैप्टर में, सो मेनी थिंग्स इज देयर। ओके, तो ये लेट मी जस्ट गो विथ यू एक और थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, दैट इज जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर हम लोग कैसे किया था थोड़ा सा बता दो तो बच्चा लोग, जीन ट्रांसफर कैसे किया था?
जीन को निकाल दिया, डीएनए को लिया, डीएनए से जीन को लिया, जीन से वेक्टर में डाल दिया. दैट मीन्स आई कैन डू इट थ्रू व्हाट, थ्रू वेक्टर आई विल डू इट. कौन कौन सा वेक्टर यूज किया था, एग्जाम्पल क्या क्या बताया, प्लास्मिड बताया, और क्या एग्जाम्पल बताया, कॉस्मिड बताया, बैक यैक सब बता दिया. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सेड यू. बट समटाइम्स it is vectorless as well. Vectorless, that is without the vector I can directly inject the or directly transfer the gene. ठीक है, vectorless very much important. vectorless ये कैसे होगा, vectorless में एक नंबर में आएगा electroporation. That means directly एक pore I will create due to electricity. I will create a pore, एक सेल के अंदर पोर हो जाएगा एंड डायरेक्टली आई विल ट्रांसफर द जीन. इलेक्ट्रोपोरेशन. 2 नंबर में आ जाओ, केमिकल मेडिएटर. केमिकल मेडिएटर मतलब बच्चा लोग, आई विल बी केमिकली मेकिंग द सेल मोर परमिएबल. नॉर्मली वी नो सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू एंटर, बट आई विल केमिकली मेडिएट इट. ठीक है. नंबर सी, माइक्रो इंजेक्शन. डायरेक्टली इंजेक्शन कर देंगे, माइक्रो इंजेक्शन. डायरेक्टली आई विल बी इंजेक्टिंग इट. माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन कर देंगे. ठीक है. डी नंबर में क्या करेंगे, बायोलिस्टिक और पार्टिकल गन. पार्टिकल गन और बायोलिस्टिक मेथड. आई विल कम टू दिस वन. एंड ई, लिपोसोम. आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल 5 once again. इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या किया, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक पोर क्रिएट कर दिया, दैट इज अ होल इज क्रिएटेड इन द सेल एंड जीन विल ट्रांसफर. केमिकल मेडिएटर मीन्स केमिकली इंक्रीजिंग द परमिबिलिटी. माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली जैसे इंजेक्शन तुम लोग को लगाया जाता है, जस्ट लाइक दैट इंजेक्शन विल बी डन टू द सेल. बायोलिस्टिक गन इज व्हाट, जीन विल बी कोटेड विद गोल्ड. किससे कोट किया जाएगा, गोल्ड से कोट किया जाएगा. दैट इज विल बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड इट विल बी शूट जस्ट लाइक अ गन. एक गन आता है, बायोलिस्टिक गन आता है, जिसके अंदर में जीन आई विल कीप एंड जस्ट आई विल शूट इट जस्ट लाइक अ गन. अ शूट विल बी डन एंड द पर्टिकुलर जीन. यस, टंगस्टन इज ऑल्सो यूज. गोल्ड एंड टंगस्टन इज ऑल्सो यूज. टंगस्टन एंड गोल्ड दोनों यूज किया जाएगा. एंड लिपोसोम, व्हेन इट विल बी कवर्ड विद सर्टेन लिपिड, वो लिपिड से उसको कवर करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डाल देंगे हम लोग. ठीक है, क्लियर. कोई डाउट यहाँ पे? सो हम वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं एंड आई कैन डू इट विद अ वेक्टरलेस एज वेल. यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा नवीन, दैट व्हाट आर द वेक्टरलेस मेथड, दिस आर द वेक्टरलेस मेथड. ठीक है, डन दिस वन. रुक्षाना, प्रिया, गुजो, लिकाली, नीनो, नबेन, नमिता, रितु, शुभो, ऋषि, डन. सेना, आई एम रबिंग दिस. 2 मिनट और लेंगे. Yes, sir. 2 मिनट और लेंगे, जस्ट 2 मिनट मोर. अभी देखो, जीन ट्रांसफर तो कर दिया, बट व्हाट वाज माय मेन एम. मेरा मेन एम क्या था, व्हाई आई वाज डूइंग सो मच ऑफ थिंग, व्हाई आई एम टेकिंग द डीएनए फ्रॉम द स्वीम, व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग डीएनए हियर देयर. क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस? वी आर डूइंग दिस टू गेट द gene product. That means whatever the gene traits, yes you can say trait, you can say character, you can say product, you can say correct, everything is correct. तो उस प्रोडक्ट को मुझे निकालना पड़ेगा. आई हैव टू टेक द प्रोडक्ट. नॉर्मली तो मैंने बोल दिया कि ह्यूमन बींग के लिए आई एम डूइंग इट, बट इट इज नॉट एक्चुअली डन. दिस इज एक्चुअली डन टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन जीन, to get the product from a microorganism. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, we do it in a big machine. एक बहुत बड़ा ऐसे मशीन आएगा like this. Okay, यहाँ पे क्या करेंगे, we will put all the plasmid will be growing here, and when the plasmid will be growing here, definitely they will be giving the product. ये बड़ा जो टैंक है, this tank is actually known as, write it, bioreactor. क्या बोलते हैं इसको, बायोरिएक्टर. अभी देखो बायोरिएक्टर में क्या हो रहा है, तुम्हारा प्लास्मिड ग्रो कर रहा है ना. नॉर्मली अगर इसको हम लोग बेसिकली बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फार्मिंग, नथिंग बट द बैक्टीरिया फार्मिंग यू कैन से, है ना. अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं, आई होप सो यू ऑल नो, फार्मिंग किसी चीज़ का भी फार्मिंग करो, वेदर यू आर डूइंग इन अ फील्ड और यू आर डूइंग पोल्ट्री फार्मिंग और यू आर डूइंग काउ फार्मिंग और वॉट एवर फार्मिंग यू आर डूइंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. द सेम थिंग इफ आई एम डूइंग द बैक्टीरिया फार्मिंग, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बैक्टीरिया, है ना. तो बैक्टीरिया
को टेक करने के लिए द बायोरिएक्टर हैव टू बी वेरी गुड, एंड दिस बायोरिएक्टर शुड प्रोवाइड द ऑप्टिमम. क्या क्या चाहिए उन लोगों को? टेम्परेचर चाहिए टू ग्रो, दे रिक्वायर पीएच ऑप्टिमम टू ग्रो, सॉल्ट चाहिए पूरा पूरी करेक्ट, विटामिन चाहिए पूरा पूरी करेक्ट, दे रिक्वायर ऑक्सीजन करेक्ट. अभी तुम खाना दोगे बैक्टीरिया को तभी तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना. बैक्टीरिया को खाना दे देने के लिए क्या क्या चाहिए बैक्टीरिया को? ये सब चाहिए. वी रिक्वायर दिस ऑल थिंग फॉर द बैक्टीरिया. ये सारा चीज कहाँ पे रिएक्ट होगा? सारा चीज कहाँ पे कंट्रोल होगा? बायो रिएक्टर में कंट्रोल होगा. एंड अल्टीमेटली व्हाट दे विल गिव यू, यहाँ से एक ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग से सारा चीज निकल जाएगा और ये क्या आ गया यहाँ पे? ऋषि प्रोडक्ट आ गया. बट दैट प्रोडक्ट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को बहुत सारा हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे. आफ्टर गेटिंग दिस प्रोडक्ट इट हैव टू गो इनटू द मार्केट, है ना. हम लोग ये प्रोडक्ट को तो मार्केट में निकालेंगे ना. है फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, हाँ हम लोग का रामदेव बाबा, हाँ ही इज सपोज प्रिपेयरिंग हनी, है सपोज हनी निकाल रहा है, तो वो हनी निकाला यहाँ से, बट मार्केट में डालने से पहले उसमें तो बहुत सारा मिक्सचर तो करना है ना. है उसमें कलर मिलाना है, उसमें चीनी मिलाना है, उसमें फ्लेवर मिलाना है, उसको पैकिंग करना है. सो फ्रॉम द प्रोडक्ट टिल द मार्केट, इन बिटवीन वॉट एवर द चेंजेस यू आर डूइंग, इट इज नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग. लिख लो क्या? डाउन स्ट्रीमिंग. All the work which is done between getting the product and coming to the market, this is known as downstreaming. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीमिंग. ठीक है, हो गया खत्म, चैप्टर खत्म. क्या टफ है इस चैप्टर में बोलो तो? कुछ भी टफ नहीं है. आई एम जस्ट सेंडिंग द नोट्स, आई एम जस्ट सेंडिंग द स्टडी मटेरियल, आई एम जस्ट सेंडिंग द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. सब कोई प्रैक्टिस करके भाई टुमारो मुझे जमा कर देना. टुमारो आई विल बी डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक. ठीक है, इससे भी छोटा चैप्टर है, कल आसान से खत्म हो जाएगा. दिस वीक वी विल बी डूइंग 4 चैप्टर 4 days एंड टेस्ट विल बी देयर. दिस वीक देयर विल बी 60 MCQs इन द टेस्ट. बी प्रिपेयर्ड, नॉट 30. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास. चलो जाओ मज़ा करो. कल फिर से तुम लोग का क्लास लेंगे, टाइट करेंगे तुम लोग को. अच्छे से पढ़ाई चालू करो तो सबका सर फोड़ देंगे मार के. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन. बाय बाय बच्चा लोग. हाँ चलो, टेक केयर, बाय. गो एंड जॉइन योर फिजिक्स क्लास नाउ. चलो बाय.